Hello everyone. So first of all, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. So in today's session we are going to discuss about that is a face space, ठीक है? And this lecture that we are going to discuss here, that is your third and A lecture, ठीक है? That means के in today's session we are going to discuss about theoretical portion, that is theory, ठीक है बच्चे? And if you have not subscribed our YouTube channel, then please इस चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स, ठीक है, अपने सर्कल के अंदर वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। सो इन टुडे सेशन what we are going to discuss about, we are going to discuss about the first point is that is phase space. What is phase space? And second one is number of microstate. How will you find number of microstate? That is very important question for net and gate exams. And how will you determine density of state and their simple expressions also, ठीक है। In today's session we are just going to discuss about theoretical portion, and in upcoming session we will discuss about their uses, how to solve numericals, ठीक है, in you can say in harmonic oscillator or one dimensional or simple pendulum, ठीक है, like these problems, ठीक है। So this discussion will be we will consider in next session, ठीक है। But in today's session we will do theoretical portion, ठीक है बच्चे। सो इससे पहले जो हमने लेक्चर्स, दो लेक्चर्स और उनके थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है बच्चे। सो अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को देखिए, अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कीजिए, ठीक है बच्चे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हाँ जी, देखिए आज जो हमने टॉपिक डिस्कशन करना है वो आपका क्या है, दैट इज फेज स्पेस, ठीक है। सो आज वाला जो टॉपिक है वो आपका फेज स्पेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू स्टडी फेज स्पेस वी नीड टू डिस्कस अबाउट दैट इज what type of system are there, ठीक है। so we need to discuss about systems, ठीक है। and there are two kind of systems, ठीक है। first one, that is your static system, that is static system, and the second one, that is a dynamic system, that is a dynamic system. And now we are going to discuss these two systems one by one. So first of all, what is static system? I think you are all familiar with these two words, static and dynamic, ठीक है। So what is a static system? So this system, that means if in a system your particle is at rest, ठीक है। अगर आपका जो पार्टिकल है बच्चे वो आपका रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, द पार्टिकल इज नॉट इन मोशन, दैट सिस्टम कोरस्पॉन्डिंग टू दैट पार्टिकल is known as a static system, ठीक है। and for that kind of system, what you will need to define that particle, you generally need three coordinates like x, y and z, ठीक है। it means number of coordinates are there, three coordinates are there, three coordinates are required to define the position of any particle in a static system. like अगर मैं ये कह रहा हूँ बच्चे कि दिस वन इज माय पार्टिकल, इस पोजीशन पे मेरा कोई पार्टिकल है, ठीक है, और इस पार्टिकल को अगर मैंने डिफाइन करना है और ये पार्टिकल जो मेरा है वो थ्री डिमेंशनल स्पेस के अंदर है, सपोज करो ये इस तरह से मेरे पास दिस वन इज माय एक्स डायरेक्शन, दैट इज वाई, एंड लेट अस सपोज दैट ये आपके पास जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है आपका वो थ्री डिमेंशनल स्पेस के अंदर है, तो इसका जो वेक्टर है सपोज करो आर है, ये आपके पास एक्स वाई जेड इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हाँ जी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट बच्चे। नेक्स्ट थिंग इज दैट इट मीन्स इन स्टैटिक सिस्टम your particle is at rest and you need only three coordinates to define its position because particle is not in motion, ठीक है। so you need
three coordinates to define the position in case of a static system. And now what about dynamic system? Now in case of dynamic system, your particle is not at rest, your particle is in motion. ठीक है, so आपका जो particle होगा वो किस स्टेट के अंदर है? दैट इज इन स्टेट ऑफ मोशन. सो आपका पार्टिकल बच्चे मोशन के अंदर है. सो अगर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, सो you need to define its position. Let us suppose that position is x, y and z. ठीक है, you need these three coordinates to define its position in three-dimensional space. Okay, and the next thing is that your particle is also in motion. ठीक है, अगर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर वो मोशन के अंदर है, तो आपको उसकी वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स क्या है वो भी आपको डिफाइन करने पड़ेंगे. ठीक है, तो इसके साथ आपको हो सकता है आपको उसकी वेलोसिटी डिफाइन करनी पड़े vx, vy एंड vz. और मे बी यू कैन से दैट अगर आप वेलोसिटी नहीं तो आप मोमेंटम कह सकते हो. ठीक है, what you will need, you need to define its position like x, y and z and plus their momentum coordinates with respect to x, that is px, with respect to y, that is py, and with respect to z, that is pz. ठीक है, so it means in this case you will need 6 coordinates. That means you will need 6 coordinates to define the position, that is to define any particle in case of dynamic system. ठीक है, so these the space in which you are required to define a particle with 6 coordinates. ठीक है, तो उस स्पेस को बच्चे क्या बोला जाता है? यही जो आपका स्पेस है इसको बोला जाता है दैट इज फेज स्पेस. ठीक है, ये आपका कौन सा स्पेस होगा बच्चे? दैट इज योर फेज स्पेस. ठीक है, उस सिस्टम को, उस स्पेस को जिसके अंदर हमें 6 कोऑर्डिनेट चाहिए, उस पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए उसको फेज स्पेस बोलते हैं. एंड इन दिस केस इसको बच्चे आप सिंपली क्या बोलोगे? दैट इज योर पोजीशन स्पेस. ये आपके पास क्या है? दैट इज पोजीशन स्पेस. ठीक है, वेयर यू आर ओनली require only 3 coordinates x, y and z to define the position of that particle because particle is not in motion. ठीक है बच्चे, वहां पे पार्टिकल आपका मोशन के अंदर नहीं है. तो ये आपके पास दो काइंड सिस्टम होते हैं, वन इज स्टैटिक सिस्टम एंड सेकंड वन इज डायनेमिक सिस्टम. ठीक है बच्चे, सो यहाँ पे आपके पास क्या है? इन स्टैटिक सिस्टम योर पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड इन डायनेमिक सिस्टम योर पार्टिकल इज इन मोशन. सो देयरफॉर you require 6 coordinates x, y, z एंड px, py एंड pz. ठीक है, आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप इन 6 कोऑर्डिनेट्स को याद रखिए बच्चे. ये वाले जो है आपके पास दीज आर x, y, z, px, py, pz. ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इनको आप याद रखो. ठीक है, क्योंकि वाइडली ये आपका मोमेंटम स्पेस जो है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स जो है उसके विद रिस्पेक्ट टू ज़्यादा आपका यूज होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर या अदरवाइज वैसे भी. ठीक है, तो वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट हम कम करेंगे डिस्कशन, ज़्यादा डिस्कशन आपका होगा विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स. ठीक है बच्चे, आई होप सो क्लियर होगा, किसी को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है बच्चे, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए. अब हमने ये जो फेज स्पेस डिस्कशन कर लिया कि इसके अंदर हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए. यहाँ पे हमें जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है बच्चे, वो आपके पास कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए. ठीक है, नाउ अब फेज स्पेस जो है इसको हम डीपली थोड़ा सा स्टडी करते हैं. इसके अंदर क्या है आपके पास बच्चे? दैट इज, अगर मैं फेज स्पेस की बात कर रहा हूँ, दैट इज फेज स्पेस. ठीक है, अगर मैं फेज स्पेस की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर बच्चे आपके पास क्या है? दैट इज व्हेन यू आर ड्राइंग एनी फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी, दैट मींस कि आप फेज स्पेस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो. ठीक है, उस टाइम के आपके पास क्या है? अगर आपके पास सिंगल पार्टिकल में बात कर रहा हूँ बच्चे, दैट इज फॉर सिंगल पार्टिकल, आपको क्या करना होगा? आपको एक तो एक पोजीशन कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, यू विल रिक्वायर वन पोजीशन कोऑर्डिनेट. ठीक है, आपको वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट है? वन पोजीशन कोऑर्डिनेट. ठीक है, और सेकंड वन आपको किसकी रिक्वायरमेंट बच्चे? इसी पोजीशन कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट टू, इसी पोजीशन कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट टू आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? यू विल रिक्वायर ए मोमेंटम कोऑर्डिनेट. ठीक है, वन मोमेंटम कोऑर्डिनेट, दैट इज वन मोमेंटम कोऑर्डिनेट. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अब देखो, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दैट कि आपके पास जो पार्टिकल है वो आपका वन डायमेंशनल पार्टिकल आप कंसीडर कर लो कि वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स
कंसीडर कर लो, आपका पार्टिकल जो है वो एक्स कंसीडर कर लो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, जैसे भी है, ठीक है, ओनली इन वन डायमेंशन आप एक्स कंसीडर कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास उसके विद रिस्पेक्ट टू एक हो गया, दैट इज वन पोजीशन कोऑर्डिनेट। अब उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको अगर फेस स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है बच्चे, इफ यू रिक्वायर टू ड्रॉ फेस स्पेस डायग्राम, अगर आपको फेस स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है तो आपको उसके विद रिस्पेक्ट टू एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी आपको वहां पे ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए आपको एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। तो ये आपकी कौन सी एक्सिस होगी बच्चे, ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट ये पी एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ये आपके पास कौन सी एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस। इसके अलोंग जो भी उसका पार्टिकल का मोशन है वो हम, जो भी उसकी ट्रेजेक्टरी है वो इसके अंडर ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चे। एक तो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है बच्चे। यू विल रिक्वायर वन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड वन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। अगर ऐसा हो जाए आपके पास सिचुएशन ये हो जाए कि एक आपके पास जो आपका पार्टिकल का मोशन है वो किस एक्सिस के अंदर है, वो मान के चलो y के अंदर है, तो उसकी y की मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू y ही आएगी बच्चे, ठीक है, वहां पे x नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ फेस स्पेस, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, इसके अंदर क्या है आपके पास, दैट इज ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है यहाँ पे डिस्कशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा। अब यहाँ पे बच्चे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके पास, दैट इज जो फेस स्पेस है ना उसका बच्चे यूज क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दैट इज फेस स्पेस, that is phase space is used to find number of microstates, ठीक है, that is number of microstates, ठीक है। अब ये फेस स्पेस का एक वन ऑफ द बेस्ट यूज है इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि ये जो आपके पास फेस स्पेस है उसको हम अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आपने काउंट करनी है, कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है कोरस्पॉन्डिंग टू एनी फेस स्पेस, ठीक है। तो वहां पे हम जो फेस स्पेस का कंसेप्ट है वो हम अप्लाई करेंगे अगर किसी सिस्टम के अंदर आपने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो वहां पे हम किसका कंसेप्ट यूज करेंगे, वी हैव टू यूज कंसेप्ट कोरस्पॉन्डिंग टू फेस स्पेस, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म अराइज हुई है वो आपकी क्या है, दैट इज माइक्रोस्टेट का। देखिए यहाँ पे जो डिस्कशन आया है, एंड रिजल्ट अपना जो डिस्कशन है इसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज माइक्रोस्टेट, ठीक है। सो वी आर नॉट ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोस्टेट, यहाँ पे हम मैक्रो और माइक्रो दोनों का कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्कशन है वो करेंगे बच्चे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको फेस स्पेस तो एक बार क्लियर हो चुका होगा कि फेस स्पेस क्या है, जहां पे हमें पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए 6 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दैट मींस कि x y z px py एंड pz, 3 कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड 3 कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। और टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए बच्चे, टोटल कोऑर्डिनेट्स हो गए अपने पास 6 कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर वो सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, उसको पोजीशन स्पेस बोल देते हैं, ठीक है। अगर 6 हो गए तो वो आपके पास क्या है, दैट इज योर फेस स्पेस, ठीक है। और फेस स्पेस जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट टू होगा। अगर आपका कोऑर्डिनेट एक x है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम होगी बच्चे px, अगर एक y है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या होगी, दैट इज py होगी, ठीक है। नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज माइक्रोस्टेट एंड व्हाट इज मैक्रोस्टेट, ठीक है बच्चे। तो देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, हाँ जी। अब देखिए, सो जो नेक्स्ट है मेरे पास, जो नेक्स्ट हमने बच्चे डिस्कशन करना है, दैट इज मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट, ठीक है। तो देखिए, आई थिंक जो बच्चे बीएससी वाले हैं, ठीक है, उन्होंने अब तक तो शायद कर लिया होगा, बीएससी सेकंड ईयर के अंदर आता है ये वाला कंसेप्ट माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। चलो देखिए, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं कर रखा तो। सो मेरे पास क्या है, अपना टॉपिक जो है वो क्या है, दैट इज मैक्रोस्टेट, ठीक है। पहले देखिए मैक्रोस्टेट क्या है, दैट इज मैक्रोस्टेट। तो अब जो आपके पास मैक्रो स्टेट है ये देखिए मेरे पास क्या होगी, और सेकंड हमने ये देखना कि आपके पास जो माइक्रो स्टेट है वो क्या होगी, ठीक है, दैट इज माइक्रो स्टेट। तो बच्चे जो मैक्रो स्टेट होती है ना, वो आप याद रखोगे कि मैक्रो स्टेट का मतलब होता है दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन इन विच सिस्टम लाइज, ठीक है, इन विच
सिस्टम लाइज, तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसके अंदर आपका जो सिस्टम है वो लाई कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, दिस डिस्कशन इज पार्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे मैक्रो स्टेट का मतलब क्या है, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन इन विच योर सिस्टम लाइज, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी नीड टू डिस्कस अबाउट देयर स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो डेफिनेशंस, तो यहाँ पे माइक्रो स्टेट क्या होगी, माइक्रो स्टेट जो होती है वो आपके पास होती है दैट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, these are the possible number of arrangements, these are the possible number of arrangements, these are the possible number of arrangements in a given micro state, in a given macro state, sorry, in a given macro state, ठीक है। तो जो आपके पास माइक्रो स्टेट होती है ना बच्चे, वो विद रिस्पेक्ट टू मैक्रो स्टेट होती है। और ये आपने बेसिक कंसेप्ट भी कर रखा है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, जो आईज से विजिबल, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, जो स्मॉल लेवल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैक्रो मतलब जिस सिस्टम के अंदर, जिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका सिस्टम लाई करेगा, वो आपके पास क्या है, दैट इज योर मैक्रो स्टेट, ठीक है। दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन इन विच सिस्टम लाइज, वो आपके पास मैक्रो स्टेट होगी। और माइक्रो स्टेट क्या होगी बच्चे, दैट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन ए गिवन माइक्रो स्टेट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, वो आपके पास, तो यहाँ से क्लियर है एक चीज कि जो माइक्रो स्टेट होगी वो एक नंबर होगा, और मैक्रो स्टेट होगी वो भी एक नंबर है, पर वो कॉन्फ़िगरेशन के विद रिस्पेक्ट टू होगी, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल चलो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट है, इसका आप किस तरह से डिस्कशन करोगे। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, चलो वो डिस्कस करते हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक एग्जांपल मैं सिलेक्ट करूं, सपोज करो मेरे पास 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। देयर आर 4 पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल हैं वो आपके कौन से हैं, दीज आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कंसीडर कर लो। दीज पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ आइडेंटिकल पार्टिकल्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट 4 पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या चूज कर सकते हो, यहाँ पे आप ये चूज कर सकते हो कि हमने, और दूसरा हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं, और वहां पे दूसरा ये चूज कर लो कि मेरे पास 2 सेल्स कंसीडर कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स मेरे पास कितने हैं, 2 सेल्स हैं, ठीक है। तो मेन जो हमारे पास यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 4 पार्टिकल्स हैं और 2 आपके पास सेल है, और वो पार्टिकल्स कौन से हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं। दैट इज यू कैन से दैट कि जो पार्टिकल है आप, हाँ जी, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, 4 पार्टिकल्स हैं, और सेल्स कितनी हैं, 2 सेल्स हैं। और जो आपके पास वो पार्टिकल्स हमने ले रखे हैं ना, उनकी हमने एक कंडीशन इंपोज कर रखी है कि वो पार्टिकल आपके पास क्या है, दीज पार्टिकल्स आर, यू कैन से दीज पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। दीज पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशेबल, लेट मी कंप्लीट दिस वर्ड, दैट इज डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। तो ये जो आपके पास पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल है, दैट मीन्स आप ये देख के बता सकते हो कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो कौन सा पार्टिकल ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो अब क्या है, हम हमें इन 4 पार्टिकल्स को इन 2 सेल्स के अंदर क्या करना है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो ये मेरे पास कंडीशन है, 2 सेल हैं, ठीक है, और इनको हमें क्या करना है, इन 4 पार्टिकल्स को इन 2 सेल्स के अंदर हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास वो कंडीशन है, ठीक है। तो अब देखिए इन पार्टिकल्स को आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश जो है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किस टाइप से करोगे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे। अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है, और यहाँ पे एक कंडीशन हमें इन्हें ये इम्पोज कर दी कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हमने इन सेल्स के अंदर, 2 सेल्स के अंदर रखे हुए हैं ना, वो पार्टिकल कैसे रखने हैं आपने, कि एक सेल में 3 पार्टिकल आए और दूसरे में आपके पास कितने पार्टिकल आए, 1 पार्टिकल। ये भी कंडीशन हमने इसके ऊपर इम्पोज कर रखी है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या है, देयर आर 4 पार्टिकल्स, दीज 4 पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, एंड वहां पे कितने सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं। उन 2 सेल्स के अंदर आपने 4 पार्टिकल अरेंज करने हैं, बट अरेंज कैसे करने हैं कि फर्स्ट सेल में 3 पार्टिकल आए और सेकंड में ओनली 1 पार्टिकल आए, ठीक है।
तो सपोज करो फर्स्ट में मेरे पास ए बी सी 4 पार्टिकल है ना, तो कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है, दीज आर 4 पार्टिकल, और डिस्टिंग्विशेबल है ना, ए कौन सा है, बी सी डी, चारों अलग अलग पार्टिकल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है कि ए बी सी तीनों इसमें हो और एक डी आपका इस साइड आ जाए। फिर ये हो सकता है कि ए बी और डी यहाँ पे हो, एक आपके पास सी यहाँ पे आ जाए। फिर ये हो सकता है आपके पास ए सी और डी यहाँ पे हो, फिर बी हो सकता है यहाँ पे आ जाए, ठीक है। फिर आपका ये भी हो सकता है कि इसमें जो ए हो वो मिसिंग हो, यहाँ पे बी हो, सी हो, डी हो और ए आपके पास इस साइड आ जाए, ठीक है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो यहाँ पे केसेस बन रहे हैं, कितने बड़े केस बचे, देयर आर ओनली 4 केसेस। तो यहाँ पे आपके पास कितने केस बन रहे हैं, सिर्फ 4 केस बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, जो हमने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी कि फर्स्ट जो आपके पास सेल है उसके अंदर 3 पार्टिकल आएंगे और सेकंड के अंदर 1 पार्टिकल आएगा, ये जो आपके पास है ना, इसको बोला जाता है दैट इज योर मैक्रो स्टेट। इसको बच्चे बोलते हैं मैक्रो स्टेट। तो ये आपकी मैक्रो स्टेट है फॉर पर्टिकुलर सिस्टम। ये जो हमने यूज किया यहाँ पे इस सिस्टम के लिए जो बच्चे आपकी मैक्रो स्टेट है वो ये है 3-1 जो है वो आपकी क्या है, दैट इज योर मैक्रो स्टेट, ठीक है। अच्छा, मैक्रो स्टेट क्या थी, मैं एक बार डेफिनेशन जो है वो दिखा देता हूँ। डेफिनेशन देखो, कॉन्फ़िगरेशन इन विच सिस्टम लाइज, दैट मीन्स कि वो कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर सिस्टम लाई करेगा। अब यहाँ पे किस सिस्टम, ये सिस्टम किस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है कि फर्स्ट के अंदर कितने पार्टिकल्स आए हैं, 3 पार्टिकल्स आए हैं, और सेकंड जो सेल है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स आए हैं, 2 पार्टिकल्स आए हैं, ठीक, 1 पार्टिकल आया, सॉरी। तो ये जो आपके पास अरेंजमेंट होगी उसको हम बोलेंगे दैट इज, उसको बच्चे क्या बोलोगे, मैक्रो स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे 3-1 जो है वो क्या है आपके पास, मैक्रो स्टेट है। अब जो सेकंड है वो देखो, माइक्रो स्टेट के लिए मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई है, फॉर माइक्रो स्टेट आपके पास क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, ये आपके पास फर्स्ट अरेंजमेंट है, ये आपके पास सेकंड अरेंजमेंट है, एंड दिस वन इज योर थर्ड अरेंजमेंट, और ये आपके पास कौन सा अरेंजमेंट है, दैट इज योर फोर्थ अरेंजमेंट, ठीक है बच्चे। तो ये यहाँ पे इसका मतलब जो आपके पास माइक्रो स्टेट्स आए या नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट वो कितने आएंगे यहाँ पे, इट मीन जो आपके पास माइक्रो स्टेट आएगी यहाँ पे, दीज आर माइक्रो स्टेट्स, यहाँ पे कितनी है, माइक्रो स्टेट्स आएंगी मेरे पास 4। वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि माइक्रो स्टेट एक नंबर आएगा, उस पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट के अंदर कितनी अरेंजमेंट बन रही है वो आपके पास आएगा, दैट इज द माइक्रो स्टेट्स। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आ गई, 4 आ रही है। किस सिस्टम के लिए, किस मैक्रो स्टेट के लिए, वो बचे आपके पास मैक्रो स्टेट कौन सी है, ये वाली जो हमने यहाँ पे, ये वाली 3-1 जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास कितनी माइक्रो स्टेट है, वो आपके पास कितनी है, 4 है, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी सिस्टम के लिए मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट जो है वो इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस के अंदर आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो हमेशा याद रखना कि जो मैक्रो स्टेट होता है वो होता है कॉन्फ़िगरेशन इन विच सिस्टम लाइज, एंड इन दिस केस अपने जो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है वो है आपके पास 3-1, यहाँ पे 3-1 है। और जो माइक्रो स्टेट होती है वो क्या होती है, दैट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन ए गिवन माइक्रो स्टेट। तो यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट कितने आए थे, टोटल अरेंजमेंट अपने थे 4 अरेंजमेंट, ठीक है बच्चे। सो आई होप सो कि ये कंसेप्ट क्लियर होगा, व्हाट इज माइक्रो स्टेट एंड व्हाट इज मैक्रो स्टेट, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा चलो, अब जो नेक्स्ट है अपने पास वो देखो, नेक्स्ट हमने किस चीज का डिस्कशन करना है, नेक्स्ट हमने मेन जो अपना डिस्कशन था, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट जो है, अब इस चीज को कैसे फाइंड करोगी, ठीक है। हमने फेज स्पेस डिस्कशन कर लिया, फेज स्पेस के अंदर क्या है, ठीक है। अब जो आपके पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं उनका आप यहाँ पे डिस्कशन कैसे करोगे, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कैसे फाइंड करोगे, उस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दीज थिंग्स, ठीक है। सो अब उस चीज का हम डिस्कशन करते हैं बच्चे, ठीक है। तो देखिए, हाँ जी देखो, अब जो नेक्स्ट है अपने पास वो क्या है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो अब जो नेक्स्ट है दैट इज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। तो अब देखिए, नंबर ऑफ जो माइक्रो स्टेट्स है उसको आप किस तरह से बच्चे फाइंड करोगे, क्या मीनिंग क्या है इस चीज का, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। इसको बच्चे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओमेगा जो सिंबल होता है ना ये वाला, आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को, ठीक है। तो ये जो आपके पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं दैट इज योर ओमेगा, वो बच्चे किसके इक्वल होगा, वो आपके पास होगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस। एक तो आपके पास
पोजीशन स्पेस आप कह सकते हो या पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ दैट इज योर मोमेंटम स्पेस, दैट इज मोमेंटा स्पेस, दैट इज मोमेंटा स्पेस, ठीक है। और डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड बच्चे यहाँ पे होता है वॉल्यूम ऑफ वन सेल, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन सेल। तो ये आपके पास टोटल आ गया, दैट इज योर जो हमने डिस्कशन करना है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो है वो बच्चे आप इस तरह से यहाँ पे फाइंड करोगे, दीज आर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखो कि ये जो आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं वो आपके पास, ये मैंने वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, ये दो केसेस यहाँ पे हम करेंगे। ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को फाइंड करने का आपका मेथड जो है, यहाँ आप कह सकते हो दैट इज योर केस नंबर 1 है। यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। लेट मी हाईलाइट दीज। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस है, वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस है, और नीचे जो आएगा वो आएगा वॉल्यूम ऑफ वन सेल, ठीक है। तो ये बच्चे वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, ये क्या होगा एक्चुअली, ये क्या चीज है, इसके लिए मैं केस सेकंड जो है वो यहाँ पे साथ में रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास आ गया दैट इज केस नंबर 2 कि अगर आपने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड करनी है तो उसको क्या लिखोगे, जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगे ना बच्चे वो आपके पास होगा दैट इज टोटल फेज स्पेस अवेलेबल, ठीक है। टोटल आपके पास फेज स्पेस कितना है और डिवाइड बाय दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वन सेल। तो ये आपके पास जो होगा ये भी आपके पास क्या है, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है। तो ये जो आपका केस नंबर 1 बना है ना वो इसी से ही फॉर्म हुआ है। तो अगर देखो आपने टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड करनी है किसी फेज स्पेस के अंदर, तो आप वहां पे क्या देखोगे, आपके पास टोटल फेज स्पेस है कितना और उसमें से एक सेल की वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। लेट मी यहाँ पे एक जो फिगर है सिंपल से हम फिगर ड्रॉ करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सेकंड केस क्लियर कर लो, उससे फर्स्ट क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो उसके लिए देखो बच्चे आपके पास जो केस क्या है, सपोज करो ये आपके पास जो टोटल है दैट इज योर फेज स्पेस, ये आपके पास कोई फेज स्पेस है, ठीक है। अब इस फेज स्पेस को हमने नंबर ऑफ सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ये आपके पास नंबर ऑफ, इस तरह से आपने सपोज करो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइंस में कंसीडर करना बच्चे, ठीक है। थोड़ी सी ड्राइंग के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये आपके पास है, इन सभी का साइज वगैरह बच्चे सेम कंसीडर करना, ठीक है। और ये आपके पास इस तरह से टोटल आप कंसीडर कर लो, ये आपके पास टोटल सेल्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन सभी का बच्चे सेल का जो साइज वगैरह है, डायमेंशन वगैरह सेम है, ठीक है। तो अब क्या है आपके पास, आपने टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड करनी है, तो वो कैसे निकलेगा, इस टोटल फेज स्पेस की जो हमने ये कंसीडर किया है, इस टोटल फेज स्पेस की जो भी वॉल्यूम है आप ऊपर लिखोगे, ये आ गया आपके पास दैट इज द टोटल फेज स्पेस अवेलेबल आ गया। उसके बाद में आप किससे डिवाइड करोगे, ये जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वन सेल है उससे बच्चे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे ना। लुक एट दिस डायग्राम, ये जो आपके पास है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वन सेल, इतना इतना ये जो सेल है इसकी वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दोगे ये वाला, ठीक है, तो वहां से आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए चलो हम सिंपल सा एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। सपोज करो ये मेरे पास एक फेज स्पेस था, ठीक है। इस फेज स्पेस को मैंने क्या किया, 4 सेल्स के अंदर कर दिया डिवाइड, ये मेरे पास आ गए 4 सेल्स, ठीक है। हाँ ये 4 सेल्स हैं आपके पास। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स यहाँ पे क्या होंगी, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ये वाला जो पोर्शन है, ये आपके पास एक सेल की वॉल्यूम है, सपोज कर लो ये आपके पास वॉल्यूम आई, आपके पास 2 यूनिट इसकी वॉल्यूम है, ठीक है। और ये जो टोटल आपका फेज स्पेस था, टोटल फेज स्पेस था वो आप कंसीडर कर लो, इस टोटल फेज स्पेस की जो वॉल्यूम थी वो आप कंसीडर कर लो दैट इज 8 यूनिट, टोटल फेज स्पेस की वॉल्यूम जो थी आपके पास 8 यूनिट थी, ठीक है। अगर आपने टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड करनी है तो फॉर्मूला देखो, टोटल फेज स्पेस अवेलेबल, टोटल कितना आपके पास 8 यूनिट है, और डिवाइड बाय आपके पास एक फेज स्पेस की या एक सेल की बच्चे सॉरी वॉल्यूम कितनी है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट से डिवाइड करो, तो ये कट के आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी आ गई, 4 आ गई ना बच्चे। दैट इज 2 यूनिट जो आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, यूनिट से यूनिट तो चलो कट गया, यहाँ पे ये आपके पास 4 टोटल वैल्यू आ गई। तो ये इस तरह से आप फेज स्पेस के अंदर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो है वो बच्चे आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो ये क्वेश्चन है कि केस नंबर 1 जो है वो केस नंबर 2 से किस तरह से आया,
तो उस चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये देखो मेरे पास अब केस 2 जो है, ये वाला जो केस है, इससे आपके पास केस 1 कैसे फॉर्म हुआ है इसके ऊपर देखो। अब बच्चे टोटल फेज स्पेस जो होता है, हमने पहले ही डिस्कशन किया था कि टोटल जो आपके पास फेज स्पेस होता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उसके अंदर टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक आपके पास हो गया x, y एंड z। तो इसकी बच्चे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी आपके पास दैट इज द, इसको बोलोगे आप दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस। ये कौन सा स्पेस है, दैट इज पोजीशन स्पेस, ठीक है। उसके बाद में हमने 3 कोऑर्डिनेट्स और देखे थे, वो कौन कौन से थे, एक आपके पास px, एक आपके पास था py और एक आपके पास था pz। और इसके कोरस्पोंडिंग जो वॉल्यूम होगी उसको बच्चे आप क्या बोलोगे, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ मोमेंटा स्पेस, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस या मोमेंटा स्पेस, ठीक है। क्लियर है। तो ये अब इसका मतलब अगर टोटल फेज स्पेस की वॉल्यूम फाइंड करनी है तो वो किसके इक्वल होगी, ये आपके 6 कोऑर्डिनेट्स जो है इनके कोरस्पोंडिंग इन्हीं की तो मल्टीप्लाई करोगे ना। तो यही तो हमने केस फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो फेज स्पेस की आपको मल्टीप्लाई करनी है, कौन कौन सा, एक तो आपके पास है दैट इज योर दिस वन वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, उसकी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसकी आप मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम ऑफ मोमेंटा स्पेस। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई से आपके पास क्या आ जाएगा, by multiplying these two values what will you get, you will get total volume of, that is the volume of phase space। आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगी किस स्पेस की, फेज स्पेस की वॉल्यूम मिलेगी, ठीक है बच्चे। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरह से आपका जो केस सेकंड है उससे आपका केस फर्स्ट जो है वो फॉर्म हुआ है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपके पास क्या है, तो ये अब ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूले दोनों अपने 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 दोनों फॉर्मूले सेम ही है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा वो डिपेंड करेगा आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है बच्चे। तो यू नीड टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज, दैट इज केस 1 एंड केस 2, ठीक है। केस 2 से ही केस 1 फॉर्म हुआ है। तो केस 2 जो है वो आपका बेसिक फॉर्मूला है, टोटल फेज स्पेस अवेलेबल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो है दैट इज ओमेगा करके इस सिंबल से हमने रिप्रेजेंट किया है, वो बच्चे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो ये दोनों मैंने डिस्कशन कर दिया। अब जो यहाँ पे हमें छोटा सा डिस्कशन करना है वो देखिए, यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन क्या है, ये जो वॉल्यूम ऑफ वन सेल है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना है कि ये वन सेल की वॉल्यूम कितनी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन करना, देखिए दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन सेल। तो नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो है आपके पास दैट इज द वॉल्यूम ऑफ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन सेल। जो आपके पास ये एक सेल है उसकी बच्चे वॉल्यूम क्या हो सकती है, तो ये देखो मेरे पास इसके लिए बच्चे फिर अगेन दो आपके पास कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन दैट इज क्लासिकल कंसेप्ट है, ठीक है। जो आपके पास क्लासिकल कंसेप्ट है वो देखो कौन सा होगा, और दूसरा आपके पास कौन सा है दैट इज क्वांटम कंसेप्ट है, वो देखो, ठीक है। अब जो बच्चे क्लासिकल कंसेप्ट है उसके अंदर क्या है, जो आपका क्लासिकल कंसेप्ट है ना उसके अंदर ये अज्यूम किया जाता है कि जो आपके पास साइज है पार्टिकल का दैट मे अप्रोच टू, दैट मे अप्रोचेस टू जीरो। आपका जो साइज है वो आपके पास जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। जो साइज है आपके पास दैट मे अप्रोचेस टू जीरो, ये आपका साइज जीरो भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अकॉर्डिंग आपका जो मिनिमम साइज है ना दैट इज द मिनिमम साइज, दैट इज द मिनिमम साइज ऑफ द सेल। जो आपका सेल है उसका जो मिनिमम साइज होगा बच्चे वो क्या होगा, वो आपके पास होगा दैट इज इक्वल टू एच। और ये एच आपके पास बच्चे क्या होता है, आप फेमिलियर हो, ये आपके पास कौन सा कांस्टेंट, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो क्लासिकल है वो तो ये मान के चलती है कि आपके जो सेल है उसका साइज जीरो भी पॉसिबल है। तो अगर जीरो हो गया तो उसका मतलब तो वहां पे उस फेज स्पेस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जो आपका क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो मिनिमम साइज ऑफ द सेल है वो बच्चे क्या होता है, वो आपके पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू एच होता है, और इसको हम बोलते हैं दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चे। तो मिनिमम साइज इस केस में क्या होगा आपके पास एच होगा, ठीक है। अब ये अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन है कि सर ये जो एच है वो किस टाइप से आया, ये कंसेप्ट कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है, तो देखो यहाँ पे चलो वो भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। दैट इज जो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, दैट इज फ्रॉम वेयर दिस एच इज इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप ये कह सकते हो कि फ्रॉम वेयर
that is from where this h is introduced, ठीक है, this h is इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपको एक्सप्लेन करने में। ये आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर बच्चे कहाँ पे है, इसका आंसर जो है दैट इज अनसर्टेनिटी, जो प्रिंसिपल है हमने कर रखा होगा, आपने आई थिंक किया होगा, दैट इज अनसर्टेनिटी जो आपके पास प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके अंदर आपने इसका डिस्कशन किया होगा। जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि जो आप मोमेंटम और पोजीशन है वो आप साइमल्टेनियसली काउंट नहीं कर सकते, दोनों में से एक के अंदर हमेशा वहां पे क्या होगी, कुछ ना कुछ आपके पास एरर होगा, दैट इज योर अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो इसके लिए अगर देखो आपके पास, अगर आप इस तरह से सिंपल, अगर मैं सेल्स वगैरह ड्रॉ करता हूँ, चलो देखो यहाँ पे अगर मैं सेल्स ड्रॉ करूँ तो किसके इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आ सकती है, देखो सपोज करो ये मेरे पास फेस स्पेस है, ठीक है, ये आपके पास फेस स्पेस है, और इस फेस स्पेस को हमने नंबर ऑफ सेल्स के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स के अंदर आप डिवाइड करोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिवाइड करके बाद में मेरे पास क्या है, इस तरह के आप स्मॉल स्मॉल सेल जो है वो कंसीडर कर लो, एंड यू हैव टू कंसीडर दैट कि इनका जो साइज वगैरह है सेम है, मैंने पहले भी आपको बोल दिया, ठीक है। अब इसमें से आप एक सेल को बच्चे चूज कर लो, ठीक है, जिस मर्जी सेल को चूज करो। अब उसके अंदर देखो बच्चे, यहाँ पे आपके पास ये एक तरह का एक फेस स्पेस डायग्राम हो गया, ठीक है, एक फेस स्पेस डायग्राम है जिसके अंदर ये जो आपके पास है वो आपके पास मान के चलो एक्स को डिफाइन कर रहा है, ये आपके पास जो है वो मान के चलो उसकी मोमेंटम जो है पी एक्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से ये एक सेल जो है, ये सपोज करो मैं इस सेल को बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो आपका सेल है जस्ट एक सेल जो कंसीडर करते हैं हम, ठीक है, बाकी सारे सेल आपके पास सेम ही होंगे ना, साइज वगैरह सेम है। तो सपोज करो ये मेरे पास वो सेल है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये वाला सेल जो हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, इस सेल को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। अब इसके अंदर जो यहाँ पे देखो मेरे पास, अब अगर इसकी मैंने ये फाइंड करना कि यहाँ पे जो पार्टिकल वगैरह है उसकी पोजीशन के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, यहाँ से लेकर कहीं भी वो पार्टिकल हो सकता है डेल्टा एक्स। अगर मोमेंटम देखनी है तो वो यहाँ से लेकर नीचे से ऊपर तक मोमेंटम उसकी डेल्टा पी कहीं भी हो सकती है, ये आ गया ना, ये आपका जीरो है, यहाँ से लेकर इस साइड दैट इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और सॉरी पोजीशन, एंड यहाँ से लेकर ऊपर तक क्या है, दैट इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और जो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली आपके पास, ये हम प्लैंक्स कांस्टेंट ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो वो जो इसीलिए यहाँ पे आपके पास आया कि ये जो साइज है ना डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, ये एच से नीचे नहीं जा सकता, ये आपके पास हमेशा प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, प्लैंक कांस्टेंट से मिनिमम नहीं हो सकता, इससे आपका वैल्यू जो है इससे ऊपर हो सकती है, 2h 3h 4h 5h एंड सो ऑन, इस टाइप की वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन h से नीचे जो वैल्यू है दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपका कंसेप्ट है दैट इज फ्रॉम वेयर दिस h इज इंट्रोड्यूस, वो आपका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वहां से इस कंसेप्ट को बच्चे इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिकली कंसेप्ट हो गया फिर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कशन करवा दिया है कि जो वॉल्यूम ऑफ वन सेल है वो क्लासिकली तो जीरो हो सकती है, और क्वांटम मैकेनिकली आपके पास क्या होगी, एच होगी, एच से आप स्मॉलर जो वॉल्यूम है बच्चे वो आप कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट है, दैट इज हाउ विल यू फाइंड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। तो इसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो है वो थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। वन डिमेंशन, टू डिमेंशन और थ्री डिमेंशनल स्पेस के अंदर आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। चलो देखो अब बस ये लास्ट अपने पास है, दैट इज द डिस्कशन कोरस्पॉन्डिंग टू 1D 2D एंड 3D, ठीक है। तो दोबारा मैं यहाँ पे जो वो हमने फॉर्मूला पीछे लिखा था वो फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी देखिए, ये देखिए, ये जो फॉर्मूला हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर यूज किया था ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी का यूज करके हमने नेक्स्ट फाइंड करना है 2D 3D के अंदर आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास, अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोजीशन स्पेस की बच्चे वॉल्यूम होगी वो आपके पास क्या होगी, अगर आप यहाँ पे ये आपके पास जो फॉर्मूला है ना बच्चे, ये फॉर्मूला आपका है 3D स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये आपका 3D है। तो वहां पे आपके पास ये जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आएंगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस क्या होगी, वो आपके पास बी से लिखते हो आप, ठीक है, दैट इज एक्स वाई और जेड, ये तीनों हैं, ठीक है। तो स्मॉल स्पेस कंसीडर करोगे तो क्या आएगा, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे उसको क्या है आपके पास
टोटल वॉल्यूम ऑफ द फेस स्पेस, ठीक है। इस तरह से dv लेके हम कंसीडर करते हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस आ गई, मल्टीप्लाई बाय दैट इज द वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, ठीक है। अब बच्चे ये जो वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस है ना, ये क्या है, जब भी आपने किसी पार्टिकल की आपने उसकी वेलोसिटी वगैरह या मोमेंटम वगैरह डिस्कशन करना है, तब वहां पे हम जो सिमेट्री के विद रिस्पेक्ट टू आप जो स्पेस चूज करोगे, वो आप क्या चूज करोगे, वहां पे आप एक स्फेरिकल स्पेस चूज करोगे, ठीक है। तो स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है बच्चे, वो फिर क्या आती है, वो हम सिंपली क्या लिखते हैं, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ये लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डिस्कशन हो रहा है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, ये बच्चे हो रहा है मोमेंटम स्पेस के विद रिस्पेक्ट टू। तो इसीलिए ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, दैट इज 4/3 पाई, ये हो जाएगा पी क्यूब, ठीक है। मोमेंटम स्पेस के अंदर है तो 4/3 पाई पी क्यूब, यहाँ पे ये आ जाएगा 4/3 पाई पी क्यूब, ठीक है। और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल। अब वन सेल की वॉल्यूम जो है वन डिमेंशन के अंदर तो आपके पास h होगी, और थ्री डिमेंशन स्पेस के अंदर बच्चे क्या हो जाएगी, दैट इज h क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम देखनी है आपने, वन डिमेंशन क्या है आपके पास h है, एक डिमेंशन के अंदर h हो सकती है वैल्यू, तो टोटल थ्री डिमेंशन स्पेस के अंदर आपके पास वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगी, h क्यूब जो वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। h से नीचे जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, साइज ऑफ द सेल जो है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन आया आपके पास, ये जो हमने रिजल्ट फाइंड किया है ये वाला दिस वन, ये आपके पास किस केस के अंदर है, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू दैट इज इन थ्री डिमेंशनल स्पेस, ये आपके पास 3D स्पेस के अंदर होगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आया है वो है दैट इज इन 3D, ये आपके पास है इन 3D स्पेस के अंदर, ठीक है बच्चे। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, अगर हमने यही डिस्कशन 2D स्पेस के अंदर करना हो तब ये डिस्कशन आप कैसे करोगे। अब 2D स्पेस के अंदर आपका ये जो डिस्कशन है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बच्चे, वो आपके पास क्या हो जाएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा, पहले वॉल्यूम थी, अब आ जाएगा एरिया, दोनों का एरिया। टू डिमेंशनल स्पेस के अंदर तो एरिया होता है ना, थ्री डिमेंशन की मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आएगा, टू डिमेंशन की मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह एरिया मल्टीप्लाई बाय ये जो है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम आई थी, अब फिर एरिया आएगा, और एरिया भी बच्चे किसका आएगा, एरिया जो आएगा वो फिर मोमेंटम स्पेस का आएगा ना, दैट इज मोमेंटम स्पेस जो होगा उसका भी तो हमें एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मोमेंटम स्पेस कौन सा था वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, वो आपके पास क्या था, दैट इज स्फेरिकल शेप है उसकी। तो स्फेरिकल शेप है तो वहां पे स्फीयर के कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया आएगा 2D के अंदर वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर सर्कल। तो सर्कल का बच्चे एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे आर की जगह मोमेंटम है तो पाई पी स्क्वेयर हो जाएगा, और नीचे जो है टू डिमेंशन स्पेस हो गया, टू डिमेंशन हो गए तो नीचे क्या आ जाएगा, एच स्क्वेयर। तो ये आपका आंसर किस में है, दैट इज इन 2D, ठीक है बच्चे। आई होप सो कंसेप्ट क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हमने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड करने हैं 1D के अंदर, तो 1D के अंदर तो बच्चे सिर्फ एक लेंथ ही बचेगी, तो यहाँ पे आपके पास लेंथ आ जाएगी L मल्टीप्लाई बाय, अब 1D के अंदर आपके पास क्या है, पहले स्फीयर था, ठीक है, उससे आपके पास क्या हो गया, एरिया आ गया। अब 1D के अंदर तो बच्चे एक डिमेंशन बची है, तो डिमेंशन कौन सी बचेगी, सिर्फ मोमेंटम p बचेगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ओनली h आ जाएगा, और ये आपके पास कौन सा केस हो गया, दैट इज इन 1D होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से जो हमने डिस्कशन किया बच्चे, वो हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रखा है, वो हमने कर रखा है विद रिस्पेक्ट टू दैट इज 3D। तो स्टार्टिंग से जो डिस्कशन चल रहा है वो 3D के विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है, तो ये आपका आंसर होगा इन केस ऑफ 3D 2D एंड 1D। आई होप सो के क्लियर होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो बच्चे वॉल्यूम थी ना, हमने जो कंसीडर किया है वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, ये वाली जो आपकी वॉल्यूम है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ये वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस जो है ना बच्चे, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपने क्या कंसीडर किया, आपने एक स्फेरिकल शेप कंसीडर किया, बिकॉज अगर आप किसी पार्टिकल, सपोज करो ये पार्टिकल है, अगर आप इसकी मोमेंटम फाइंड करना चाहते हो तो ये पार्टिकल आफ्टर टाइम मान के चलो 5 सेकंड ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर आपने उस पार्टिकल को कैप्चर करना है तो आप कौन सी सिमेट्री कंसीडर करोगे, इसके अराउंड आप एक स्फीयर कंसीडर करोगे ना बच्चे, इसके अराउंड आप एक स्फीयर कंसीडर करोगे, इस टाइप से आप स्फीयर कंसीडर करोगे। तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया है वॉल्यूम जो थी वो हमने किसकी ली थी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कंसीडर किया, ठीक है बच्चे। जब 2D के अंदर चला जाएगा तो वो जो स्फीयर है वो 2D के अंदर शेप कौन सी होगी, सर्कल हो जाएगा, तो सर्कल का आपके पास एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर, और उसके कोरस्पोंडिंग हमने यहाँ पे क्या यूज किया, पाई पी स्क्वेयर, ठीक है।
आई होप सो कि क्लियर होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी किसी के मन में कोई डाउट है देन फील फ्री टू कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स जो आपके पास यूट्यूब वीडियोस के अंडर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कमेंट सेशन के अंदर अपना डाउट जो है वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे। तो ये आपका आज वाला जो सेशन है वो कंप्लीट है। हमने फेस स्पेस, ठीक है, दैट इज उसके बाद में हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे जस्ट हमने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट डिस्कशन कर लिया। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होती है ना बच्चे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बस उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है वो सिंपल सी चीज है। आप सिंपली एक चीज समझ लो कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होगी ना, वो आपके पास क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एनर्जी इंटरवल के अंदर कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं उसको डेंसिटी ऑफ स्टेट बोल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं हम। अगर आपके पास ये ई से लेकर ई प्लस डी कोई एनर्जी रेंज है, दैट मीन्स कि ये रेंज कितनी आ गई डी। अब इसके अंदर कितनी माइक्रो स्टेट है उसको बोला जाता है दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट। उसको आप बोलोगे दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और वहां पे हम नंबर ऑफ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो जो आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा विद इन 3-4 डेज, ठीक है। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। आई होप सो कि सभी को क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है देन आप कमेंट सेशन के अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। सो दैट इज योर सेशन फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है बच्चे। थैंक यू।